Hello, my dear students. A very good morning to all of you. Can you all hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. सचिन, you say कि आपको सुनाई नहीं दे Yes, रहा? ma'am. Kindly आप डिस्कनेक्ट हो Yes, के ma'am. वापस लॉग इन हुई है Zoom मीटिंग में क्योंकि बाकी सबको आवाज जा रहा है. Okay. Yes. Now, welcome to all the new students who have joined today. How are you all? Good, ma'am. Okay. All Well, fine, ma'am. yes. Now, Fine, Fine, ma'am. Good afternoon, ma'am. good afternoon. Okay. My dear students, as you all know, we all are here today in this meeting to understand the subject logical reasoning. Kindly mute yourself, my dear students, so that we do not get disturbed because of each other. Yes. Now, हम लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एक साथ आए हैं? लॉजिकल रीजनिंग. ओके, यस. आप लोगों को पता है कि हमारे क्लासेस कुछ प्रीवियस टाइम से चालू थे, राइट? तो कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं, बट यू ऑल डू नॉट हैव टू वरी. ऑल द लेक्चर्स will be shared with you in the group and very soon shall be uploaded on the app as well. Yes. Now, my dear students, okay, to those who all have joined today, okay, and to all those students who are with me in this journey since around a week, I want to tell you one thing. Yes. Now, what has happened is, because we are in continuation, today I want your support from the students who have already been with me. ओके जैसे हमने कुछ चैप्टर्स करके रखे हैं, अब कुछ चैप्टर्स हम आगे करेंगे, बट जैसे हमें पता है हमारे फ्रेंड्स आज ज्वाइन हुए हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए वी हैव टू बी टुगेदर, एंड जरूरत पड़े तो हमें कोई चैप्टर रिपीट करने की जरूरत पड़े तो भी हम करेंगे. यस, लिसन टू one important thing. Kindly mute yourself, my dear students. Yes. Okay. Yes. Now, tell me. This is an army of 5, and this is one army. Tell me, which is stronger? Which is stronger? This army of 5 or this one army? Nikita? I'm army of one. Ma'am, 5. Surbhi, please mute yourself. Army of Couple, one, ma'am. please mute yourself. Yes. Kindly make sure that all of you are muted. Yes. Yes. This 5 army or this one army? This one army is strong. And we all are together as this one army. Are you listening to me? So we are in support of each other, and I am with you because I know that you all are with me. Okay. Yes. So welcome you all my new students and also to my old students. Okay. Let's continue with chapter coding and decoding. You all must be wondering, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, you all must be wondering, मैम हमने ये चैप्टर कर लिया है. Remember, we are one army. Right? This is a very important chapter. So this is a golden chance for you all कि हम ये chapter फिर से एक साथ live session में करेंगे. Are you all with me? Yes. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes. Let's go ahead. Now, before going ahead with this chapter, I have something very interesting for you all. Okay? आप लोगों ने देखी है उरी मूवी? ओके हम उस मूवी का एक क्लिप देखेंगे और फिर उससे समझेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग को प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल करते हैं. ओके यस हियर इट इज. मैम नहीं दिख रहा है कुछ. नहीं दिख रहा? नो मैम.
Ma'am, we can't hear properly. You can't hear? Okay. Ma'am, we can't see either. Oh, I'm so No, we sorry. can see, but video is a bit blurry and sound is not so clear. I'm not able to see. I don't know And what guys, to do. please mute your mic यार. वन तुम मिनट तुम म्यूट लोग का योरसेल्फ, सबकी वीडियो आ प्रॉब्लम्स रहा मैंने था. सुन ली है, बहुत जल्दी मैं सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी. ओके, यस. सब लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेट का कनेक्शन है. ओके, now what did we learn from this particular, what did we learn from here, what did we learn from the screen? हमने क्या देखा कि एक ऑफिशियल है, वो कॉल करके क्या बोल रहा है, he is telling the number and the other person is jotting down the number, but understand the purpose, the logic behind the one who is saying and behind the one who is recording is very different. तो लिख के ले रहा है, किस हिसाब से लिख के ले रहा है? As if he is writing down the phone numbers. Yes. Right? As if he is writing down the phone number. But सामने वाला इंसान क्या कर रहा है? Coordinates लिख के ले रहा है. Understanding what is the main purpose for showing that clip? No prejudice to whatever political sensation is about that video. Main thing मुझे आपको ये समझाना था कि कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है. हम लोग भी करते हैं, राइट? हम लोग भी करते हैं. कैसे? से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कॉलेज अटेंड नहीं किया, इट वॉज येस्टरडे एंड से देयर वाज नो पैंडेमिक, कॉलेज रेगुलरली चालू था, पर आप लोगों ने कल का लेक्चर क्या किया? आप लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया. एंड सडनली व्हाट हैपेंस? सडनली व्हाट हैपेंस? से कि आपका फ्रेंड आपके घर आता है, आपका फ्रेंड आपके घर पे आ गया, इट्स डिनर टाइम, मम्मी पापा आर सिटिंग अलोंग विद यू एंड योर फ्रेंड स्टार्ट्स. ओके, मम्मी आपके फ्रेंड को पूछती है, तो बेटा कैसे चल रहा है कॉलेज? योर फ्रेंड सेज, आंटी बहुत अच्छा चल रहा है. सडनली अ ट्विस्ट इन द सिचुएशन. आपकी मम्मा आपके फ्रेंड से पूछती है, तो बताओ बेटा कल का लेक्चर कैसा था? और आपको पता है अब मेरा दोस्त कुछ बोल देगा. वो योर फ्रेंड स्टार्ट्स, वो कल का लेक्चर एंड यू लाइक राइट? सो दैट कम ऑन, दैट शेक्स योर फ्रेंड टू अ रियलिटी. और आपके फ्रेंड को रियलाइज हो जाता है कि मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे कुछ बोलना नहीं है. right? So what did you do here? You have conveyed your message by way of signals. आप लोगों ने signals की मदद से अपना मैसेज कन्वे किया है. This is nothing but coding. Understanding, my dear students? This is nothing but coding. To all my new students who have joined the session today, I would want to repeat a few things. कैसे है? हम लोग वो सीक्वेंस नहीं फॉलो करेंगे जो हमारे मॉड्यूल में दिए हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने डिफिकल्टी लेवल से सीक्वेंस अरेंज नहीं किया है. हम लोग क्या करेंगे? डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से सीक्वेंस अरेंज करेंगे एंड देन यस, हम लोग डिफिकल्टी लेवल से अरेंज करेंगे ऑल द चैप्टर्स. अब तो हमें ट्रैक रखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर हुआ है, कौन सा चैप्टर नहीं हुआ, कौन सा चैप्टर कहां पे हमने सॉल्व किया है. इसलिए हम लोग बनाएंगे इंडेक्स. ओके, ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ योर नोटबुक आई वांट यू ऑल टू प्रिपेयर अ मैपिंग शीट, ओके, एंड इंडेक्स, सो दैट हमें पता चले कि हमने कौन से चैप्टर्स कवर किए हैं, वो चैप्टर्स मॉड्यूल में कौन से पेज पे है एंड हमारे नोटबुक में भी कौन से पेज पे है. ओके, यस. सो now we are going to study chapter number 3. Okay, that is the sequence number 3, rather coding decoding. मॉड्यूल में कौन से पेज पे है ये चैप्टर? 184. I hope you all have jotted this down in your notebooks. Come on. Serial number, topic name, module and notes. Karthik,
Could you please mute yourself? Thank you. Yes. So I hope you've taken this down. Let's go ahead with what is coding and decoding. Coding is a system of signals. हम जब अपना मैसेज सिग्नल्स के तौर पे सामने वाले को देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? कोडिंग. अब कोडिंग में हमेशा दो लोग इन्वॉल्व हैं. एक जो मैसेज दे रहा है, एक जिसको मैसेज मिल रहा है. अब जो मैसेज दे रहा है वो क्या करेगा? ओरिजिनल मैसेज को याद करेगा, उसको कोड करेगा, राइट? ही विल अप्लाई सम लॉजिक टू इट, देन ही विल कन्वर्ट द मैसेज इनटू सम कोड. फिर वो कोड जाएगा दूसरे इंसान के पास. दैट दूसरा पर्सन को क्या होगा? ही विल रिसीव द मैसेज एंड देन वो जो मैसेज मिला रहेगा वो तो कोडेड फॉर्म में रहेगा, तो उससे उस कोड को लॉजिक लगा के ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करना है. सो द वन हु सेंड्स द मैसेज, sends the coded message is known as what? Is known as what? Sender. Is known as sender. So sender is a person who is sending the coded message. तो ओरिजिनल मैसेज को कोड में कन्वर्ट करने के प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? कोडिंग. ओके. एंड रिसीवर क्या करता है? उसे सिग्नल्स मिलते हैं और वो क्या करता है? कोडेड मैसेज को ओरिजिनल मैसेज में कन्वर्ट करता है. सो सेंडर इज अ पर्सन हु ट्रांसमिट्स द कोड. ट्रांसमिट्स मींस सेंड्स. Receiver is the person who receives the signals. Decoding. Transmitted codes or signals are decoded on the other side by the receiver. Receiver क्या करता है? फिर जो मैसेज मिलता है उसे क्या करता है? ओरिजिनल कोड में कन्वर्ट करके उसे डिकोड करता है. Yes. In questions on coding, decoding, basic word is coded in a particular way and the candidates are asked to code other word in the same way. इसको हम practically question form में समझेंगे तो हम ज्यादा easily समझ पाएंगे. Okay, yes. Now, further, I would want to tell you something. Okay? See, हम जब अब now you all are no more standard 10 students or standard 12 students. आप लोग professional students होंगे. अब जब आप लोग professional students हो तो क्या जरूरी है? जनरल नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना अपना सिलेबस का नॉलेज जरूरी है. ओके. सो आई वुड वांट टू टेल यू, क्वीन एलिजाबेथ है, राइट? क्वीन एलिजाबेथ 2, राइट? दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली. शी इज नोन एज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. ये जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड है, राइट? अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. आप चाहते हो कि आपका शॉफर, ड्राइवर गाड़ी लेके घर के सामने आए, तो हम क्या करते हैं? यस मिस्टर ड्राइवर, please get the car in front of the house. But can the royal family keep on doing this in public? No. उनका हर चलना, उठना, बैठना जैसे बॉलीवुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, राइट? उनका होता है, वैसे ही इन लोगों का सब कुछ अंडर स्क्रूटनी होता है. सो उनको क्या करना पड़ता है? उनको सिग्नल्स करने पड़ते हैं अपने स्टाफ को. फिर स्टाफ अंडरस्टैंड्स द सिग्नल और उस प्रकार वो बिहेव करते हैं. सो क्वीन एलिजाबेथ 2 मेक्स यूज ऑफ हर पर्स. She makes use of her purse, her bag that she carries in order to send signals to her staff. अब वो कैसे करते हैं? How does she do that? When everything is fine, happy, जैसे चल रहा है वैसे बहुत अच्छा है, then she carries the bag in the crook of her left arm. Left arm के crook में, crook means this joint, right? तो यहाँ पे वो अपनी पर्स कैरी करते हैं. At that time everything is fine, the staff is happy and they do not have to do anything. सपोज अगर क्वीन एलिजाबेथ ने दूसरे हाथ में बैग पकड़ ली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इट्स टाइम टू लीव दिस प्लेस एंड टू गो टू अदर प्लेस. शी हैज टू मूव अलोंग. इसका मतलब क्या है? जो स्टाफ है, जो शॉफर है, नीड्स टू गेट द कार एंड नीड्स टू कैरी हर अलोंग इन द कार. Okay, suppose if she's not happy with the conversation and she wants to leave the situation, वो बैग नीचे रख देते हैं. उन्होंने अगर अपनी बैग नीचे रख दी, इसका मतलब ये है that she wants to leave the conversation. She does not want to continue. That means कोई तो रीजन करके स्टाफ उनके पास आएगा और उनको कुछ तो मैसेज देगा and then taking help of that message, she will leave that conversation. Okay, understanding all my dear students. So this is how coding, decoding actually happens in our practical life. Okay? Yes, is it interesting? Yes, my dear students, is it interesting?
Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Okay, yes. Now, yes. Now, let's go ahead with the practical problems in your modules, right? So, you all have to come to page number 184 of your modules. Come on, page 184 of the modules. Okay, ready? Let's go ahead further. Yes. Now, order of the English alphabet, right? Now, here in coding, we are going to make use of several words. We'll make use of alphabets. We'll make use of numbers, combinations, signals, symbols. इन सब का collection करके हम लोग कोई message को code करेंगे और फिर वो logic को हमें find out करना है, decipher करना है. To decipher means to what? To unveil, to find out. एंड देन वो लॉजिक हमें हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है. ना, ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट मींस ए टू जेड, 1 to 26. कितने अल्फाबेट्स? ए टू जेड. कितने नंबर्स? 1 to 26. ओके, जो लोग मेरे पुराने लेक्चर्स में थे, राइट, तो उनको पता है व्हाट इज द ट्रिक दैट वी यूज. आइसक्रीम, लाइम जूस, ऑरेंज टॉफिया. आइसक्रीम, लाइम जूस, ऑरेंज टॉफिया. पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ. Right? How are we going to remember this? Very, very, very important. I'll tell you. How are we going to remember this? Yes. So, yes. E. Yes. E. Ice cream. Lime juice. Orange. And toffee. So that starts from 5, 10, 15, 20 and 25. Right? राइट right? अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हर बार हर क्वेश्चन के लिए क्या हम लोग A to Z लिखेंगे? क्या हम लोग उसके नीचे 1 to 26 लिखेंगे? नहीं. We will develop our own tricks and we will understand. Yes, it is EJOTY. Okay? Yes, how to apply this? That's my responsibility. I shall tell you. Let's go ahead. Further. Yes. Letter coding. Alphabets in a code are replaced by other alphabets according to a specific rule to know its code. So common rule should be detected first. Let's practically apply this and understand. Let's come to question number 1, page number 184. Question number 1 says, ZYXW is coded as ABCD. Then STUV is coded as. Okay? अब हमें किसका कोड दिया है? उन्होंने हमें किसका कोड दिया है? यस, Z, Y, X, W. राइट? इसका कोड उन्होंने क्या बोला है? A, B, C, D. मतलब समझो A, B, C, D, E, F, G, H. ये तो नॉर्मल सीरीज हुई. Z, Y, X, W. Is it reverse? Yes, it is reverse. मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या है कि एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है, एक राइट टू लेफ्ट जा रहा है. अंडरस्टैंडिंग? यस. ओके, सो हमें किसका कोड फाइंड आउट करना है? STUV. कम ऑन एवरीवन अलोंग विथ मी. क्या हमें यहाँ पे सीरीज लिखनी पड़ेगी? हाँ, पूरी अल्फाबेट सीरीज लिखनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि क्या यहाँ पे हम ट्रिक यूज कर सकते हैं? नहीं. ट्रिक कब यूज करते हैं? जब अल्फाबेट को नंबर दिया गया हो. राइट? यहाँ पे तो बस रिवर्स ऑर्डर है, तो क्या हमें पूरी सीरीज फिर से लिखनी पड़ेगी? यस. ओके, सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारा लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करेंगे. ओके, सो A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ये हो गई फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब हमें रिवर्स लिखना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द रिवर्स. A, B, C, D, E, F, G, H. Stop.
क्वेश्चन क्या है? STUV को कोड करना है. सो STUV का तो हमें कोड मिल चुका है. करेक्ट? उतना हो गया है. अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है. Not required. So STUV. Oh, I'm sorry. STUV. HGFE is your answer. Is this interesting? Is it interesting, my dear students? Yes, ma'am. Okay, let's Yes, go ma'am. ahead with the next question. Yes. Question number 2. BCD is coded as DEF. Then true is coded as. Okay, let's see. BCD. इसको कैसे कोड किया है? DEF. हमें फाइंड आउट करना है ट्रू को कैसे कोड करना है. ठीक है. अब बी और डी देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. बी सी को छोड़ दिया डी, मतलब बी सी और डी. सो कैन आई से बी प्लस टू? कैन आई से बी प्लस टू? यस, बी प्लस. अब सी और ई, डी ई. सो कैन आई से इट इज प्लस टू? यस. डी एफ, कैन आई से ई एंड एफ? यस. सो प्लस टू. सिंपल सिंपल. हमें हमारा कोड मिल चुका है. कम ऑन, लेट्स अप्लाई. प्लस टू प्लस टू प्लस टू एंड प्लस टू. So come on, S plus 2 will be what? T plus 2 will be what? U gaya V. R S T. U V W. E F G. So what's the correct answer? V T W G is the correct answer. Yes. Okay. Let's go ahead. Shall we go to the next question? Shall we go ahead with the next question? Yes, ma'am. Okay. Yes. And to my dear students who have joined today, I would want to tell you that do not write anything in the textbook. ये टेक्स्ट बुक हम कम से कम 3 से 4 बार हमें रिवाइज करना है. क्यों? क्योंकि अपना टारगेट है CS EET को जल्दी से खत्म करे और CS एग्जीक्यूटिव के और पे आगे बढ़े. तो उसके लिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस. तो अगर हमने आंसर्स टेक्स्ट बुक में ही लिख दिए तो हमारी नजर बार बार उस आंसर्स पे जाएगी. तो क्या हम सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे. इसलिए हम लोग क्या करेंगे? सब कुछ जो भी मैं लिख के दे रही हूँ, राइट इट डाउन, जॉट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. ओके. मैं हर बार हर क्वेश्चन को पेज नंबर क्यों दे रही हूँ? ताकि आप लोग इसी तरीके से अपने नोटबुक्स में भी प्रेजेंटेशन कीजिए, सो दैट आप लोग इजीली नोटबुक और मॉड्यूल को कोरिलेट कर सके. ओके. सो प्लीज टेक डाउन एवरीथिंग इन योर नोटबुक्स. यस. Let's go ahead with question number 3. Hyderabad is coded as IXEDSZCZE. Then Chennai is coded as. Okay. So come on, let's start and understand how is the logic being incorporated. Yes, Hyderabad. Yes, Hyderabad. Hyderabad is coded as -1. SZCZE. अब हमें क्या करना है? हमें किसको कोड करना है? चेन्नई. ओके. चेन्नई को कोड करना है. करेक्ट. अब हमें क्या समझना पड़ेगा? पहले तो लॉजिक समझना पड़ेगा. लेट्स सी. H और I के बीच में क्या लॉजिक है? H और I के बीच में क्या लॉजिक है? H के बाद आता है I. H I. So can I say it is +1? Yes. One. अब Y और X के बीच में. Yes, ma'am. पहले X फिर Y, पहले X फिर Y, मतलब Y के पीछे X, राइट? सो -1. अब D and E, D के बाद E, सो +1. अगेन E के पीछे D, सो -1. R S अगेन +1. अब A के पीछे क्या है? A के पीछे क्या होगा? A to Z खत्म हुआ, Z से वापस A चालू हुआ. सो A के पीछे क्या है? Z है. सो दिस इज अगेन -1. B और C
+1, A और Z -1, D और E +1. So ये सेम लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे. ओके, सो लॉजिक इज, व्हाट्स द लॉजिक? +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1. Okay, yes. Okay, yes. Let's find out the answer. Yes. C +1, C के बाद आता है D. H -1, H के पीछे क्या आता है? बोलो बोलो. G. E के बाद आता है F. N के पहले क्या आता है? M. N के बाद क्या आता है? M. N के बाद O. O. A के पहले क्या आता है? Z. 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 I के बाद क्या आता है? J. So D, G, F, J. Z, J is your right answer. Do you get it, my dear हम students? लोग का चैप्टर खत्म हो गया था. Sorry, कोई कुछ मैसेज दे रहा है मुझे? नहीं बोल रहे, हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट था. Okay, let's go ahead further. Yes, question number 4. I hope you all are taking this down in your notebooks because I trust you all. Okay, yes, number coding. यहाँ पे क्या होगा? नंबर्स को अल्फाबेट्स दिए जाएंगे या अल्फाबेट्स को नंबर्स दिए जाएंगे या नंबर को नंबर दिया जाएगा, बस हमें उनके रिलेशन समझना है. यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 1, पेज 185. क्या कहा है हमें? Apple is coded as 25563. Rang is coded as 7148. Then what will purple be coded as? Okay, क्या बोला है हमें? Apple. Apple is coded as 25563. Rang is coded as 7148. हमें किसको कोड करना है? Purple. ओके, अब पहले तो क्या करेंगे? पहले दो कोड्स चेक करेंगे. अब मुझे बताओ, एप्पल और रंग में कोई अल्फाबेट कॉमन है क्या? कोई अल्फाबेट कॉमन है क्या? नो मैम. नो. Yes, ma'am. Yes. Now, I'll tell you one thing. अगर आप लोगों को बार बार स्क्रीन चेंज हो रही है, ओके, जैसे कोई बोलता है, कोई आंसर करता है तो स्क्रीन चेंज होती है, तो आप मेरे आइकॉन पे जाके अगर डबल क्लिक करोगे तो वो पिन हो जाता है, राइट? दैट विल मेक इट इजियर फॉर यू ऑल. यस, सो पी. अब देखो पी, चेक पी चेक करो, कितना है नंबर? 5. Apple. यू चेक करो, Five. राइट, इट्स राइट हियर. 1. आर चेक करो. यस, 7. पी ऊपर का ही हमने फाइंड आउट कर दिया है. एल चेक, एल इज 6. E is 3. 3. Your correct answer is 517563. This is your correct answer. Okay? Okay, come on. I just give you 2 seconds to quickly take this down in your notebooks. Yes, ma'am. Okay, let's go to the next question. In a language, A is coded as B, B is coded as 2, and face be coded as. पहले जो भी क्वेश्चन में दिया है हम लोग अच्छे से लिख के लेंगे, फिर लॉजिक फाइंड आउट करेंगे एंड देन वो लॉजिक अप्लाई करेंगे. ओके, सो नो गड़बड़ी इन स्टेप्स, नो शॉर्टकट, क्योंकि हमें लॉजिकल रीजनिंग में 25 on 25 मार्क्स लाने हैं. No scope of silly mistakes, no scope of major mistakes, nothing. Yes, so A is coded as 1, B is coded as 2. What will face be coded as? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. A1, B2, ये तो ABCD का सीक्वेंस है, फिर ये तो 1 2 3 4 का सीक्वेंस हो गया. मतलब हमें यहाँ पे अल्फाबेट और नंबर का ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, अल्फाबेट और नंबर का ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा. तो चलो
Let's start. What's our trick? When we go from left to right, the trick is ice cream, lime juice, orange toffee. 5, 10, 15, 20, 25. So come on. Face F. F कहां पे आता है? बिल्कुल यहाँ पे. E के बाद E5. तो F क्या आएगा? 6. 6. A is the first alphabet, so it's always 1. C, A, B, C. 3. 1, 2, 3. E का number है 5. 5. So our correct answer is 6, 1, 3, 5. Anyone having any doubts? No. No. Is it easy? Is it Yes. interesting? जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे, it is going to be super, super, super interesting. Yes. Yes. Let's go ahead. Push is coded as 1, 2, 3, 4. Rough is coded as, yes, push is coded as 1, 2, 3, 4. Rough is coded as 6, 5, 2, 7, 4. Suit be coded as. Okay, let's start. Yes. Now, S कहां पे है? यहां पे है. S is equal to 3. O